Today we will learn or read the lesson number 2.2, The Boy Who Broke the Bank. This lesson we had already explained or watched in the Google Meet app before 8 to 7 days. But at that time so many students were absent in Google Meet meeting. That's why I am recording this lesson once again. Please listen carefully and look at in your screen carefully while I will read the lines or sentences. Try to understand each and every word and underline or write down the difficult words. Then ask me if you want to ask any difficult words meaning. I will explain you. So please be careful. And now I am reading the lesson The Boy Who Broke the Bank. This is lesson number 2.2. This lesson has written by Ruskin Bond, who was an Indian but from the British descent. He was adopted by one family, an Indian family, who lived in Mussoorie, Lahore in India. He was a great writer. He has written so many great masterpieces. That's why he got Sahitya Academy Award in 1992. And he also got the India's biggest awards like Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. Now I am reading the lesson, the first line. Please look at in your textbook carefully or on the screen carefully. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank, owned by Seth Govind Ram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram the washerman's son passed by. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. So these are the two small paragraphs, the introduction, where our main character Nathu was grumbled to himself something. He was not happy at all. When we see the sentence, he was grumbled to himself and he was hurriedly and carelessly doing his job or cleaning the steps. That show us the action. He was not happy at all. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नथु जो है वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा है. ग्रम्बल मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी में कोई काम कर रहा है, बड़बड़ा रहा है अपने आप से, कुछ कह रहा है अपने आप से. एज ही स्वेप द स्टेप्स, जब वो सीढ़ियों को साफ कर रहा था. कौन सी? पीपल नगर बैंक की सीढ़ियों को. ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम. यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो पीपल नगर बैंक है उसके मालिक कौन है, वो किसका बैंक है, वो है सेठ गोविंद राम. उसके जो मालिक हैं, बैंक ओनर हैं, उस बैंक के मालिकाना हक रखने वाले जो शख्स है उनका नाम है सेठ गोविंद राम. और जो स्वीपर है, झाड़ू लगाने वाला, उसका नाम है नथु, जो कि बड़े गुस्से में जो है अपने आप से कुछ बड़बड़ाते हुए, जो बहुत ही अपने आप से मायूस है, कोई नाराज़ है किसी बात से और बड़ा गुस्सा है. इस बात को जो है, इस एक्शन को देखकर, इन अल्फाज को देखकर इससे जाहिर होता है. He used the small broom hurriedly and carelessly. अपनी उस छोटी सी जो झाड़ू का इस्तेमाल है वो बड़े ही जल्दी बड़ी लापरवाही से, हरीली यानी जल्दी से, केयरलेसली यानी लापरवाही से. एंड द डस्ट, और जो धूल है, जब झाड़ू लगाने के बाद जो मिट्टी उड़ रही है, आफ्टर राइजिंग, वो उड़ रही है इन अ क्लाउड, एक बादलों के जो है गुबार की तरह, जिसको गुबार कहते हैं. अबोव हिज हेड, उसके सर पर से, जैसे झाड़ू लगा रहा है उसके सर पर से मिट्टी उड़ रही है. फिर पीछे से उसके जाकर सेटल डाउन, कहाँ पर जाके बैठ रही है, अगेन ऑन द स्टेप्स, फिर से वो सीढ़ियों पर जाकर रुक रही है. और उसकी झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा वहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन इसकी कोई परवाह नथु को नहीं है. बड़ी ही गुस्से में और लापरवाही से वो काम कर रहा है. मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है. एज नथु वॉज बैंगिंग हिज पैन, और जब उसने जो है जितना बचा कुचा कचरा था उसको अपने पैन में जब समेट लिया, जमा कर लिया और ले जाकर जो है उसने
ज़ोर ज़ोर से डस्टबिन को क्या किया, दे मारा और वहाँ पर उसने फेंक दिया। सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय, और वहाँ से किसका गुजर हो रहा था, एक धोबी का लड़का है। वॉशरमैन यानी धोबी को कहते हैं, जो कपड़े धोता है, जो लॉन्ड्री मैन होता है। तो सीताराम एक वॉशरमैन का लड़का है जो वहाँ से गुजर रहा था। वो लड़का जो नत्थू की उम्र का है, उसका दोस्त है। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, और इस वक्त वो अपनी जो है तमाम जो कपड़े लाए हुए थे धोने के लिए, लॉन्ड्री के लिए, उनको पहुंचाने का वो काम कर रहा है, उनकी डिलीवरी वो कर रहा है। ही हैड अ बंडल, और उसके सर पर उसके पास एक जो है बंडल ऑफ क्लोथ्स है, फ्रेशली और प्रेस्ड क्लोथ्स। कैसे हैं, पूरे लॉन्ड्री के कपड़े हैं जो कि अच्छे से धुले हुए और स्त्री किए हुए, आयरन किए हुए कपड़े हैं। बैलेंस्ड ऑन हिज हेड, और वो उसके सर पर रखा हुआ पोटला था कपड़ों का। What Sitaram told to Nathu, we will see it. Don't raise such dust, he called out to Nathu. नत्थू को जो है सीताराम ने कहा कि इतनी धूल क्यों उड़ा रहा है, क्यों इतना गुस्से में जो है अपना काम कर रहा है, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा गुबार फैल गया है। इस तरह से नत्थू को सीताराम ने कहा। आर यू एनॉइड, आर यू एनॉइड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ। क्या तुम इसलिए गुस्सा हो, एनॉइड गुस्सा, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि इन लोगों ने तुमको 2 रुपये बढ़ाकर, जो महीने में तुमने 2 रुपये बढ़ाने के लिए कहा था वो नहीं दिया, क्या तुम इसलिए गुस्सा हो? नत्थू को जो है सीताराम ने पूछा, इसलिए इतना गुस्से में काम कर रहे हो क्या? थोड़ा सा उसने अपने दोस्त से मजाक करते हुए पूछा। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, नत्थू ने बड़े गुस्से में कहा, कंप्लेन की कि मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करना है, निकाल मत अब ये बात, बिल्कुल मुझे इस बारे में कोई बात करना ही नहीं है। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पेमेंट, मुझे तो अब तक अपना जो है रेगुलर पे भी नहीं मिला है, जो हर महीने जो पेमेंट मिलता है उसकी भी जो है अदायगी अभी तक नहीं हुई है। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ मंथ, और तुमको पता है कि आज 20 तारीख आ गई महीने की, जहाँ 1 या 2 तारीख को पेमेंट मिलना चाहिए था। आज 20 दिन गुजर गए और मुझे अब तक इन्होंने पेमेंट तक नहीं दी। 2 रुपये बढ़ा कर देने की तो बात बहुत दूर हो गई, बहुत ज़्यादा अभी जो है ये 2 रुपये बढ़ा कर देना तो बहुत ज़्यादा जो है ये सिर्फ सोचने की बात है, लेकिन इन्होंने अब तक मेरी जो पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट, वो तक अदा नहीं की, और तो 2 रुपये की बात करना चाहता है, तो इसलिए इस बात को भी छेड़ो ही मत, बिल्कुल मत निकालो। इस तरह से नत्थू ने सीताराम से कहा। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अ पुअर मैन सैलरी, कोई सोच सकता है कि इतना बड़ा बैंक जहां एक गरीब आदमी की जो है सैलरी रोकेगा, उसकी तनख्वाह रोक लेगा, कोई ऐसा सोच सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बैंक ने मेरी पेमेंट अदा नहीं की। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगा। आई एम ऑफ का मतलब है यहाँ पर काम छोड़ना, नौकरी को छोड़ देना। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, अब 1 हफ्ते के लिए भी मैं अब यहाँ पर जो है आगे सैलरी मिलने के बाद काम नहीं करना चाहता। एंड नथु बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स जस्ट टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपनी इस बात को और ज़्यादा जोर देने के लिए नथु ने अपने उस जो है पैन को, जो डस्टबिन पे इतने ज़ोर से दे मारा कि ताकि वो बताना चाहता था कि वो कितना गुस्सा है और कितना मजबूत अपनी बात पर अड़ा हुआ है, और अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा था ऐसा करके। तो उसने एम्फेसाइज़ किया इस बात पर, जोर दिया और बताया कि हाँ मैं बिल्कुल यहाँ से काम छोड़ने ही वाला हूँ। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम, सीताराम ने कहा हाँ चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हें जो है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ इसके लिए। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू, मैं भी तुम्हारे लिए जो है एक दोस्त के नाते जॉब तलाश करूँगा, देखूँगा कहीं तुम्हारे लायक, तुम्हें सूट करने वाला कोई काम अगर मिलता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड ही प्लॉडेड बेयरफुट अलॉन्ग द रोड, और वो जो है तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए, चौड़े चौड़े कदम उठाकर अपने नंगे पैरों से वहाँ से वो
निकल गया रोड से होते हुए। बेयरफुट यानी नंगे कदम, नंगे पैर। प्लॉडेड यानी तेज़ी से चलना, बहुत तेज़ चलना। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, और कपड़ों का बंडल इतना बड़ा था जिसकी वजह से उसका सर और उसके आजू बाजू के दोनों जो शोल्डर्स थे वो छुप रहे थे, हाइड हो रहे थे। इस तरह से वो अपना सामान लेकर वहाँ से बात करके अपने दोस्त से निकल गया। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, और अपने कपड़े जब उसने देना शुरू किया अपने उस प्रोसेस को, तो पहले घर में उसने कपड़े दिए, दूसरे में दिए, तीसरे में दिए, फिर वो चौथे घर पहुँचा अपने उन कपड़ों को पहुँचाने के लिए, डिलीवरी करने के लिए। हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वॉज इन नीड ऑफ स्वीपर, तो उसने सुना उस चौथे घर में कि वहाँ की जो मालकिन थी, जो औरत थी, वो बात कर रही थी कि उसे किसी झाड़ू लगाने वाले की ज़रूरत है, अपने घर पर सफाई वाले की ज़रूरत है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, अपना बंडल बांधते हुए उसने कहा, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क, मैं ऐसे एक लड़के को जानता हूँ जो सफाई का काम अच्छे से कर सकता है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, लेकिन वो आपके यहाँ पर काम अभी नहीं बल्कि अगले महीने से शुरू कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। इस तरह से उसने कहा। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वॉन्ट्स टू लीव, अभी वो एक बैंक में काम कर रहा है लेकिन वो लोग उसकी पेमेंट, उसकी तनख्वाह वक्त पर नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वहाँ से वो काम छोड़ना चाहता है, वहाँ वो काम नहीं करना चाहता। इस तरह से जो है सीताराम ने उस लेडी से कहा। इज़ दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव, उन लेडी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है मिसेस श्रीवास्तव। सच में? क्या ये सच कह रहे हो तुम? वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, तो तुम उससे कहो कि वो आए और कल आकर मुझसे मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस to both customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way, और इस तरह से जो है सीताराम बड़ा खुश हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं अपने कस्टमर के भी काम आ गया और साथ ही साथ अपने दोस्त का भी काम हो गया। और बड़ी खुशी से उसने अपना बैग उठाया, hoisted मतलब जो वज़न बंडल होता है अपने सर पर रख, ऊंचाई पर उठाकर उसने सर पर रखा और वहाँ से वो खुशी खुशी चला गया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, मिसेस श्रीवास्तव को कोई शॉपिंग करना था, कुछ खरीद फरोख्त करना था, खरीदना था उनको। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप्स। तो मिसेस श्रीवास्तव को जैसे कि शॉपिंग के लिए जाना था, तो सबसे पहले उन्होंने ऑलरेडी अपने घर में जो दो नौकर थे, जैसे कि एक आया उन्होंने रखी थी अपने बच्चे को संभालने के लिए, और दूसरा जो जो खाना बनाने वाला कुक था, उनको जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए निकलने से पहले। और शॉपिंग पर जाने से पहले उन्होंने कहा आया से कि बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे, और कुक से कहा कि दोपहर के खाने में देरी नहीं होनी चाहिए। फिर वो अपनी शॉपिंग के लिए निकल पड़ी, जैसा कि वो हमेशा रिवायती तौर पर उनकी एक आदत थी कि वो अक्सर करके शॉपिंग पर जाया करती थी। कस्टमरी मतलब यहाँ पर अक्सर करके जो आदत होती है, जो एक रिवाज होता है कि अक्सर वो जो है उनको आदत थी शॉपिंग पर जाने की। अपने उस शौक़ को पूरा करने के लिए वो मार्केट प्लेस चली गई, पीपल नगर शहर के। अ लार्ज शेडी टेमरिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाज़ार, बाज़ार के जो आखिर में एक बहुत बड़ा टैमरिन ट्री था, इमली का दरख्त था जो बहुत फैला हुआ था, बहुत चौड़ा था, बहुत ही घना दरख्त था। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। और वहाँ पर जैसे ही वो बाज़ार गई, उस आखिरी बाज़ार के जो है कोने पर, तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे मिसेस भूषण जो कि उनकी दोस्त थी, वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। उनको उन्होंने वहाँ पर पाया। और वो किस लिए खड़ी हुई थी? बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो अपने आप को थोड़ा सा आराम पहुंचाने के लिए मिसेस भूषण कुछ देर के लिए उस दरख्त का सहारा लेकर वहाँ पर खड़ी हुई थी। देखिए दरख्त कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसका भी यहाँ पर जो इस सेंटेंस से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में वो
किसी साथी या किसी दोस्त से कम काम हमारे लिए नहीं करता। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंकरचीफ। और मिसेस भूषण क्या कर रही थी, बहुत गर्मी होने की वजह से उस पेड़ के नीचे खड़े होकर एक बड़ा अपना रुमाल जो उनके पास था, उस हैंकरचीफ से वो अपने आप को हवा दे रही थी ताकि थोड़ी सी गर्मी कम लगे उनको। शी कंप्लेन ऑफ समर which she affirmed was definitely the hottest in the history of people नगर। और वो कह रही थी, कंप्लेन कर रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन है आज का, और वो अफर्म करना चाहती थी, इस बात को जो है वो मनवाना चाहती थी और ये जतलाना चाहती थी कि डेफिनेटली आज जो है सबसे गर्म दिन है, सबसे हॉटेस्ट डे है पीपल नगर का, आज की जो है इस गर्मी का। She then showed Mrs. Srivastav a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design। जैसा कि मिसेस भूषण ने बताया कि वो क्यों यहाँ पर आई हुई थी, और उन्होंने एक कपड़ा निकाला अपनी बैग से और उस कपड़े का सैंपल उन्होंने जो है मिसेस श्रीवास्तव को बताया कि मुझे इस टाइप का जो है कपड़ा ख़रीदना है बाज़ार से। फिर दोनों ने जो है तकरीबन 5 मिनट तक उसके कलर के बारे में, उसके शेड के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में डिस्कशन किया, और उनके 5 मिनट वहाँ पर जो है चले गए, मतलब टाइम पास हो गया, दोनों दोस्तों के बीच में बातचीत हो गई। फिर इसके बाद हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, अब दोनों ऊब चुके थे, एग्जॉस्टेड मतलब ऊब जाना, बोर हो गए थे अब इस जो है कपड़े के बारे में बात करके। अब क्या बात करें, तो मिसेस श्रीवास्तव कहती है, मिसेस श्रीवास्तव सेड, डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंदराम्स बैंक can't even pay the employees, can't even pay its employees। उन्होंने कहा कि तुम जानती हो अब करने के लिए बात कुछ था नहीं। तो उन्होंने जो धोबी ने कहा कि उस नत्थू की जो पेमेंट नहीं हुई बहुत दिनों से, सिर्फ नत्थू की पेमेंट नहीं हुई थी। लेकिन मिसेस श्रीवास्तव ने क्या कहा, देखो यहाँ पर वो कहती हैं कि सेठ गोविंदराम का जो बैंक है, हमारे शहर का बड़ा बैंक, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, वहाँ के जो है काम करने वालों को तक पेमेंट नहीं मिल रही है। Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month। आज सुबह ही मैंने जो है उस स्वीपर से सुना कि कई महीनों से, अब देखो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा अभी खिचड़ी पका दी और जो थोड़े से उबले हुए चावल बने थे उसमें थोड़ा सा तड़का उन्होंने जो है लगाकर उसको खिचड़ी बनाकर कहा कि मैंने स्वीपर से सुना था उन्होंने नहीं, लेकिन कहा कि मैंने स्वीपर से सुना और कई महीनों से, सिर्फ 20 तारीख हो चुकी थी लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई थी। लेकिन ये क्या कह रही है कि उसकी जो वेजेस है, वेजेस मतलब तनख्वाह, जो काम करते हैं उसकी मजदूरी, उसकी जो तनख्वाह होती है उसको कहते हैं वेजेस, कि वो कई महीनों से वेजेस नहीं दे पाए हैं सेठ गोविंदराम वाले अपने एम्प्लॉयज़ को, पूरे अपने जो है काम करने वालों को नहीं दे पाए। ऐसा उन्होंने जैसे ही कहा, फिर देखो इस बात का क्या असर होता है अभी। शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण, ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है, मैं हैरान हूँ इस बात को सुनकर। इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन बैड वे। अगर वो अपने झाड़ू वाले तक की पेमेंट नहीं दे सकते, सफाई वाले तक की, पियून की, मेरे को लगता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब हालात में है, उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ दी अदर्स कुड बी गेटिंग पेड अदर, और किसी और को भी वहाँ पर शायद पेमेंट नहीं मिली होगी, मतलब कोई झाड़ू वाले को नहीं मिली तो बाकियों को क्या मिलेगी पेमेंट। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टैमरिन ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ अ हस्बैंड। और जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना, वो उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को वहीं छोड़ा उस पेड़ के नीचे और फ़ौरन अपने हस्बैंड को तलाश करने के लिए निकल पड़ी बाज़ार में, जो उनके साथ आए हुए थे, लेकिन अब कहाँ गायब हो गए थे ये पता नहीं है। वो वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप, जो कहाँ बैठे हुए थे, एक फोटोग्राफी शॉप के जो ओनर थे कमल किशोर, उनके साथ बैठे हुए थे उस शॉप के पास, टॉकिंग विद द ओनर, और वो मिस कमल किशोर से बात कर रहे थे, मिस्टर भूषण। सो देयर यू आर, अच्छा तो आप यहाँ हो, क्राइड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण ने बड़े गुस्से में चिल्लाकर कहा, अच्छा तो यहाँ बैठे हैं, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, और मैं तुम्हें 1 घंटे से तलाश कर रही हूँ।
वेयर डिड यू डिसअपियर, अरे कहाँ गायब हो जाते हो आप, ऐसा क्यों करते हो। बीवी ने हस्बैंड को बड़े ही हक से, बड़े ख़तरनाक तरीके से जो है डांटना शुरू किया। बेचारा हस्बैंड क्या कहता है, देखो, नो वेयर, मैं कहीं नहीं गया। रिप्लाइड मिस्टर भूषण, अरे भाई मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ बाज़ार में। हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप आई माइट हैव फाउंड यू, मैंने तुम्हें देखा कि तुम एक स्टेशनरी शॉप से कुछ खरीद रही थी, मैंने तुम्हें वहाँ देखा। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, लेकिन तुम एक जगह कहाँ रुकती हो बाज़ार में, किसी दुकान में, कभी एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान। लाइक अ बी, मक्खी की तरह तुम तो भटकती रहती हो हर दुकान में। इन अ फ्लावर गार्डन, जैसे मक्खी, शहद की मक्खी अलग अलग गार्डन के फ्लावर पर जो जाकर बैठती है, वैसे तुम बाज़ार के हर शॉप में कभी इधर तो कभी उधर होती हो, इसलिए मैं एक जगह आकर यहाँ पर बैठ गया, मैं कहीं नहीं गया। उन्होंने सफाई दी। अब बड़ा गुस्सा आया इस बात को सुनकर मिसेस भूषण को, और वो कहती हैं, डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, अब बस करो, अभी शुरू मत कर दो अपना भी, अब बड़बड़ाना बंद कर दो ज़रा। द हीट इज़ ट्राइंग इनफ, ये जो गर्मी है ना वही काफ़ी है, अब और ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पीपल नगर बैंक के साथ क्या हो रहा है, ये पीपल नगर में क्या हो रहा है हमारे शहर में। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, यहाँ के तो बैंक भी ठीक ढंग से अब नहीं चल रहे हैं। मिसेस भूषण को सब लोग सुन रहे थे कि बैंक को आखिर क्या हो गया, यहाँ के बैंक भी जो ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं और बैंक भी दिवालिया हो रहे हैं। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना, बर्बाद होना। तो मिस्टर कमल किशोर जब उन्होंने सुना तो वो बड़े हैरान होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, व्हाट्स दैट, सेड कमल किशोर। कमल किशोर ने कहा कि आप क्या कह रही हैं। सिटिंग अप सडनली, विच बैंक, कौन सा बैंक, बड़े हैरानगी से उन्होंने पूछा खौफजदा होकर। वाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स, और कौन सा बैंक हो सकता है, मैं ऑफ कोर्स पीपल नगर बैंक की बात कर रही हूँ। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़, मैंने सुना है कि वो अपने कर्मचारियों को, अपने काम करने वालों को तक तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, अब ये मत कहना मिस्टर किशोर, क्या आपका अकाउंट भी वहाँ पर है। नो बट माई नेबर हैज़, नहीं नहीं मेरा नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोसी, जो पड़ोस में दुकान है, मेरे पड़ोसी का है। ही एक्सक्लेम्ड एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, जो बाजू में दुकान थी जहाँ पर पार्टीशन लगा हुआ था, वहीं पर जो है दूसरे दरवाजे पर उन्होंने चिल्लाकर कहा, मिस्टर कमल किशोर ने, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, अरे दीपचंद तुमने सुना ये नई बात, द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स, कि पीपल नगर बैंक जो है वो दिवालिया हो गया, बर्बाद हो गया, क्या तुमने सुना ये। यू वुड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन, जाओ और अपना पैसा निकाल लो जल्दी से वहाँ से, वरना बाद में तुम्हारा पैसा मिलने वाला नहीं है। अब जैसे ही दीपचंद ने ये सुना, दीपचंद हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन वॉज सो स्टार्टल्ड दैट हिज हैंड शुक, उसने जैसे ही बात सुनी कमल किशोर की, उसके हाथ कांपने लगे, उसके हाथ थरथराने लगे, और एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और इस कपकपाहट में उसने अपने कस्टमर का सीधी तरफ का कान काट दिया। द कस्टमर एल्ड, कस्टमर जोर से चिल्लाया, विथ पेन एंड डिस्ट्रेस, बड़े दर्द से और डिस्ट्रेस, बड़ी ही जो है टेंशन से। दो चीज़ें दी हुई है, एक है पेन और एक है डिस्ट्रेस। अब पेन से क्यों चिल्लाया, डिस्ट्रेस से क्यों चिल्लाया, आगे इसको एक्सप्लेन किया मुसन्निफ ने, राइटर ने। पेन बिकॉज ऑफ द कट, कान कटने की वजह से दर्द हुआ, एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड, और डिस्ट्रेस इसलिए हुआ, टेंशन और तनाव इसलिए हुआ दिमाग पर, दूसरा चीख इसलिए थी कि उसने अभी अभी एक अजीब व गरीब और बहुत ही बैड जो न्यूज़ थी वो उसने सुन ली थी। दीपचंद के साथ साथ, विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन,
अपने सीध एक तरफ का जो है सर बिल्कुल अनशेवन वैसे ही रखकर, आधा बाल कटा हुआ और आधा बाल नहीं कटा हुआ, वैसे ही वहाँ से निकला दुकान से वो एल्डरली जेंटलमैन। ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट्स स्टोर वेयर देयर वाज अ टेलीफोन। और दौड़ते हुए वो बाज़ार में उस जनरल स्टोर पहुँचा जहाँ टेलीफोन का जो है इंतज़ाम किया हुआ था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, और सबसे पहले उसने जो है सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, और उस वक्त सेठ जो है घर पर नहीं थे। वेयर वॉज ही देन, तो फिर वो कहाँ गए, कहाँ जा चुके थे वो। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, सेठ बड़े मज़े से जो है छुट्टियाँ मना रहे थे कश्मीर में। कश्मीर की वादियों में वो जो है ठंडी का और सर्दी का मज़ा ले रहे थे। और ओह वॉज दैट सो, अच्छा अच्छा ऐसा है, एल्डरली जेंटलमैन ने कहा। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, उनको यकीन नहीं हुआ इस बात पर कि वो कश्मीर गए हुए हैं। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद, और दौड़ते हुए वो वापस उस नाई की दुकान पर गए और दीपचंद से, उस नाई से उन्होंने कहा, द बर्ड हैज़ फ्लोन, पंछी उड़ गया, परिंदा उड़ गया। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंद राम ये शहर छोड़ चुके हैं, यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। इस तरह से जो है एल्डरली जेंटलमैन ने दीपचंद को आगाह किया। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, बिल्कुल ये खबर सच है, इसका मतलब कि बैंक बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, और वो दौड़ते हुए अपने जो है शॉप से निकले। मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस, और सीधा रास्ता उन्होंने पकड़ा अपनी ऑफिस का। एंड चेक बुक, और अपनी चेक बुक लाने के लिए वो चले गए। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाज़ार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, और पूरे बाज़ार में ये खबर ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल्ड टू द शॉप, जनरल मर्चेंट से होते हुए शॉप सर्कुलेटेड अमंग्स द कस्टमर्स, ग्राहकों, वहाँ के पर जो आए हुए ग्राहक थे उन शॉप से होते हुए ग्राहकों तक पहुँची। एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस, और अलग अलग सिमत में ये खबर फैलती गई। कहाँ कहाँ गई देखो खबर ये, टू द बीटल सेलर, द टेलर, द फ्री वेंडर, द ज्वेलर, द बेगर सिटिंग इन द पेवमेंट, ऑन द पेवमेंट। ये खबर फैलती गई बीटल सेलर कहते हैं सुपारी बेचने वाला, सुपारी फरोख्त करने वाला, टेलर, फ्री वेंडर जो कूंचा लगाकर खड़े होने वाले लोग होते हैं उन तक वो खबर गई, ज्वेलर जेवर बेचने वाले तक, सुनार तक वो खबर गई, बेगर यहाँ तक के हत्ता के भिखारी को भी इस बात का पता चला, जो पेमेंट पर जो एक साइड में कई सालों से जो है उसने कब्जा कर रखा था उस जगह पर, वहाँ वो बैठा करता था, उस तक भी ये खबर पहुँची, उसको भी पता चला बैंक के बारे में। यानी कहीं कोई जगह नहीं छूटी बाज़ार के अंदर जहाँ पे ये खबर न फैली हो। अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये बात, आगे देखते हैं क्या अंजाम होता है इस चीज़ का। ओल्ड गणपत द बेगर, एक भिखारी था जो बहुत ही बूढ़ा था, काफ़ी सालों से वहाँ रह रहा था उस शहर में। हैड अ क्रुक्ड लेग, और वो जाना जाता था अपाहिजपन की वजह से, उसका एक पैर जो था वो उससे अपाहिज था, वो चल नहीं सकता था, उसका एक पैर काम नहीं करता था, अब तक लोगों को यही पता था। ही हैड बीन स्क्वैटिंग ऑन अ पेवमेंट, स्क्वैटिंग मतलब कब्जा करना, हमेशा वहाँ पर रहना, पेवमेंट फॉर ईयर्स, कई सालों से उसने उस पेवमेंट पर कब्जा कर रखा था। कॉलिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स कहते हैं खैरात मांगना, भीख मांगना, और वहाँ बैठकर वो आने जाने वालों से खैरात मांगा करता था। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो, बैरो मतलब एक छोटी सी गाड़ी, कोई शाम के वक्त आता था अपना वो बैरो लेकर, एंड टेक हिम अवे, और उसको वहाँ से ले जाता था, लेकिन वो चल नहीं सकता था इसलिए वो अपाहिज था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, आज तक कभी किसी ने उसको चलते हुए नहीं देखा था, अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। बट नाउ, लेकिन आज, अब, ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, जैसे ही गणपत ने सुना
उसको मालूम हुआ, लर्निंग का मतलब यहाँ पर मालूम होना, उसको मालूम हुआ कि बैंक बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया, पैसा डूब सकता है। गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन, गणपत ने हर एक को हैरत ज़दा कर दिया, हैरान कर दिया। लिपिंग ऑन हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट द टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, और ऐसा उठ खड़ा हुआ कि बिल्कुल इतना तेज़ वो दौड़ा कि कोई आम इंसान भी इतना तेज़ नहीं दौड़ सकता था। और कहाँ पर गया वो? उस बैंक की सिमत दौड़ने लगा बड़ी तेज़ी के साथ। उसको कोई होश नहीं कि लोग उसको देख रहे हैं। वो अब तक लंगड़ा बना हुआ था, अब तक वो जो है अपाहिज था कई सालों से, और भीख मांग रहा था, अपने उस माजूरपन को दिखा रहा था, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई माजूरपन जो है नहीं था, ऐसा कोई नुक्स उसके अंदर नहीं था। जैसे ही पता चला कि बैंक डूबने वाला है तो उठ खड़ा होकर भागने लगा। It soon became known that he had 1,000 rupees in savings, और वो इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसने भी जो है, उस भिखारी ने भी अपने 1,000 रुपये उस बैंक में जमा कर रखे थे। इस फिक्र से वो बेचारा सब भूलकर भागने लगा बैंक की तरफ। Men stood in groups at street corners discussing the situation, और सब लोग खड़े होकर अब उस हालत के बारे में पता करने लगे, बातें करने लगे पीपल नगर बैंक के बारे में और गोविंदराम के बारे में। पीपल नगर सेल्डम हैड क्राइसिस, पीपल नगर जो अब तक इतना अच्छा शहर था, जहाँ पर किसी किस्म की कोई क्राइसिस नहीं आई थी, कभी कोई बुरे हालात नहीं आए थे। क्राइसिस मतलब बहुत ही ख़राब हालात। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, न कभी यहाँ पर कोई फ्लड आया था। अर्थक्वेक, ना कोई अर्थक्वेक आया था। और ड्रॉट, और ना ही कभी कोई कहत पड़ा था। एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेक्यूलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी। पहली मर्तबा सब ने इतना बड़ा जो है संकट, इतनी बड़ी मुश्किल और मुसीबत देखी थी पीपल नगर में, जिसकी वजह से सब लोग आपस में जो है बड़ी हैरानी से, बहुत ही अलग अलग अपनी रायों को, अपने जो है सलाहों को, अपने जो है मशवरों को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? बांट रहे थे, शेयर कर रहे थे। फ्रेंजी का मतलब अगर देखेंगे हम यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूरी, घबराना, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ। ऐसे हालात थे कि हर कोई वहाँ पर घबराया हुआ था बैंक की इस हालत की वजह से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सम बोस्टेड ऑफ देयर फोरसाइटेडनेस, कुछ लोग अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे थे, अपने आप की तारीफ़ें कर रहे थे, अपने दूर अंदेशी के बारे में बता रहे थे, फोरसाइटेडनेस। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अकाउंट बंद कर लिया था, वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे और कह रहे थे कि हमने तो पहले ही अपना अकाउंट बंद करवाया, हमको तो पता ही था ऐसा होने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे बढ़ाई मारने वाले, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बढ़ाई। अदर्स speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excuses indulged in by Seth Govindram। और कुछ लोग थे जो बातें कर रहे थे कि आखिर ये जो हुआ किस तरह से जो है सेठ गोविंदराम ने ये तमाम दिवालिया जो बैंक हुआ है उसके ज़िम्मेदार हैं, किस तरह से यहाँ से वो रफू चक्कर हो गए या भाग गए। अब यहाँ पे एक वर्ड है इंडल्ज इन। इंडल्ज इन का मतलब होता है कि कोई काम में हिस्सा लेना। मतलब सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सब किसका किया धरा है, ये सब सेठ गोविंदराम का जानबूझकर किया हुआ एक उनकी साजिश है कि वो बैंक को किसी तरह से जो है वो बिल्कुल उसको दिवालिया करना चाहते थे या पूरा पैसा लेकर लूट कर यहाँ से वो भागना चाहते थे। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी अपने मुंह जो है बातें कर रहे थे, सबका अपना मुंह था, सब जो है अपने अपने जो है सोच से, अपने अपने जो है विचार से, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते जा रहे थे। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, सेठ वन, एक ने कहा कि सेठ जो है ये स्टेट छोड़कर भाग गया है, यहाँ से वो भाग गया, फ्लेड हो गया, गायब हो गया। ही हैड फ्लेड द कंट्री, सेड अनदर, एक ने तो कहा अरे रे रे, रियासत नहीं बल्कि वो तो मुल्क छोड़कर चला गया, वो तो यहाँ से दूसरे मुल्क भाग गया। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, सेड अ थर्ड,
तीसरा कहता है कि नहीं, वो कहीं भागा नहीं है, बल्कि वो जो पीपल नगर बैंक का मालिक है सेठ गोविंद राम, वो यहीं पीपल नगर में कहीं छुपा हुआ है। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री, सेड अ फोर्थ, चौथे ने तो हद कर दी और बेचारे को मार ही डाला और कहा कि उसने खुदकुशी कर ली। हमारे यहाँ पर जो पेड़ है, इमली का दरख्त है हमारे बाज़ार में, उससे लटक कर उसने अपनी जान दे दी बैंक दिवालिया होने के बाद। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय, और वो किसको मिला? झाड़ू लगाने वाले को सुबह सुबह वहाँ पर वो दिखाई दिया, वहाँ पर उसको मिला। By noon the small bank had gone through all, दोपहर होते होते बैंक की हालत और ज़्यादा जो है बुरी हो गई और उसके साथ अब बहुत बुरा होने भी वाला था। इस बात का अंदाज़ा हो चुका था क्योंकि बहुत बात जो है आग की तरह फैल चुकी थी। इट्स रेडी कैश, बैंक में कैश रेडी था रोज़ाना की तरह सब काम कर रहे थे। एंड द हरास्ड मैनेजर वॉज इन अ डायलेमा, और बेचारा मैनेजर जो है वो बहुत ज़्यादा हरास्ड, परेशान हाल था और उसको डायलेमा में चला गया। जैसे उसने सुना इस बात के बारे में कि हमारा बैंक दिवालिया हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं, कि पता नहीं लोगों को कहाँ से जो है इसका खदशा हो गया, और वो डायलेमा का मतलब सदमे में चले जाना, एक सदमा हो गया उसको ये खबर सुनते ही। बड़ा दुखी हुआ, बहुत ही परेशान हुआ। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी, और जो इमरजेंसी फंड था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर जो पैसा मिलता था, फंड मिलता था, कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंट, वो जो है दूसरे बैंक से लाना पड़ता था जो कि 30 मील दूरी पर था उनके गांव से, उनके शहर से। एंड ही वॉजंट श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड टू वेट अनटिल देन, और उसे यकीन नहीं था क्या वो लोगों को मनवा लेगा कि जब तक मैं पैसा लाता हूँ उस वक्त तक जो है आपको कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। परसुएड यानी मनवाना। उसको यकीन नहीं था इस बात का कि लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। इतना ज़्यादा जो है वायलेंट होकर लोग जो है बैंक में एक साथ आए हुए थे। एंड देर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, और सेठ गोविंद राम की राय लेना चाहता था मैनेजर, उनको बताना चाहता था, लेकिन सेठ गोविंद राम कश्मीर में एक हाउस बोट में रुके हुए थे, वहाँ पर वो रह रहे थे, तो उनसे कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से उनको इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे। पीपल वर टर्न्ड बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, हमें लोग आए और लोगों ने जो है आकर वहाँ पर डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि हमें पैसा जल्द से जल्द चाहिए, कल तक हम वेट करेंगे या फिर आज के आज हमें पैसा चाहिए, अभी के अभी। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि आप हमें अगले 2 दिन में पैसा दो, अगले दिन दो, ये हम सुनना ही नहीं चाहते बिल्कुल। लोगों ने इनकार कर दिया इस बात को सुनने से। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड, इसलिए सब बाहर बैंक के जमा हुए। ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग, और सीढ़ियों पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, नारे लगाने लगे, गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन, गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन। और कहने लगे कि हमारा पैसा दो वरना हम बैंक को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। एंड फेच द सेठ, और सेठ को बाहर खींच निकालेंगे। वी नो ही इज़ हाइडिंग इन द सेफ, हमको मालूम है कि सेठ जो है छुपा हुआ है बैंक के अंदर, वो छुपा हुआ है यहीं पर सेफ लॉकर के अंदर। मिसचीफ मेकर्स हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक, ऐसे भी लोग उस क्राउड में आए हुए थे जिनका कोई पैसा या अकाउंट उस बैंक में नहीं था, सिर्फ शरारत करने के लिए वो आए हुए थे। जॉइन द क्राउड, उन्होंने भी क्राउड को ज्वाइन कर लिया। एग्रेवेटेड देयर मूड, और उन्होंने लोगों को एग्रेवेट किया, उनको उकसाया, और ख़ुद जो है एक ऐसा मूड उन्होंने बना लिया कि आप बैंक को बर्बाद करके ही जाएंगे, जबकि उनका कोई अकाउंट यहाँ पर नहीं था, सिर्फ शरारत करने के लिए वो आए हुए थे। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राई टू प्लेकेट देम, मैनेजर दरवाजे पे खड़ा हुआ और उनको समझाने की कोशिश करने लगा, उनको बिखराने की कोशिश करने लगा, प्लेकेट करने लगा उनको कि आप मेरी बात मान लो। बेचारा मनवाने की कोशिश कर रहा है। ही डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट, अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है और आपका जो पैसा जमा किया है वो चूँ का तू है, बस हमें लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको जमा करने के लिए टाइम लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ। He urged them
टू गो होम। उसने जोर दिया इस बात पर, उसने समझाया उनको और ये समझाने की कोशिश की कि आप आज अपने घर चले जाओ एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, और कल के दिन वापस आ जाओ, अगले दिन आपका सब का पैसा जो है जूं का तूं आपको मिल जाएगा। यू वॉन्ट इट नाउ, चैंटेड सम ऑफ द क्राउड। किसी ने चिल्लाया क्राउड में से, भीड़ में से, कि हमें हमारा पैसा अभी चाहिए। नाउ नाउ नाउ, अभी अभी अभी, मतलब अभी चाहिए। एंड ब्रिक हर्ल्ड थ्रू द एयर क्रैश द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक। और इतने में एक जो है ईंट उड़ता हुआ आया और आकर जोर से जो है वो बैंग हुआ। किससे? पीपल नगर बैंक की खिड़की से, जो कि शीशे की बनी हुई थी, और शीशा टूट गया। और जैसे ही एक ईंट आया तो सब ने जो है बैंक तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। नत्थु अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। नत्थु रोज़ की तरह अपने जो है झाड़ू लगाने के लिए वहाँ पर आया, बड़ा ही परेशान, बड़े गुस्से में, लेकिन पेमेंट मिलने तक काम तो करना ही था। तो वहाँ पर आया रोज़ाना की तरह सुबह सुबह, और झाड़ू लगाने के लिए जब वो खड़ा हुआ, he saw the refuse and broken glass and the stones clattering the steps। उसने पूरी तरह से जो है सीढ़ियों पर कांच के शीशे टुकड़े जो है पड़े हुए, बिखरे हुए देखे, क्लैटर हुए देखे। रेजिंग हिज हैंड्स इन अ जेस्चर ऑफ हॉरर, और अपने दोनों हाथ उसने जो है डर से, खौफ से उठाए। एंड डिस्गस्ट ही क्राइड, और अपने डिस्गस्ट, गुस्से में उसने जो है जोर से चिल्लाया, हूलिगन्स, sons of donkeys, as though it isn't had enough to be paid late। एक तो मेरी तनख्वाह यहाँ पर लेट हो रही है, और ये इनको जो है हूलिगन्स को, हूलिगन्स यानी टपोरी, बदमाश, और ये बदमाशों को जो है सन्स ऑफ डोंकीज, गधे के बच्चे, उनको यहाँ पर काम बढ़ाने की पड़ी हुई है। इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड। यहाँ पर मेरा सिर्फ काम ही बढ़ रहा है, पैसा तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। He smote the steps with his broom, scattering the refuse। और उसने ज़ोर से झाड़ू दे मारी उस सीढ़ियों पर, और काम करने के लिए अपने आप को जो है उसने मना कर लिया, मतलब गुस्से में आ गया बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग नथु, सेड वॉशरमैन्स बॉय। और वहाँ पर सीताराम आया, उसने गुड मॉर्निंग कहा, हाय कहा नथु को, गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। और इस दफ़ा वो साइकिल पे था, साइकिल से वो उतरा। आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ? और उसने कहा, क्या तुम तैयार हो अगले महीने के पहले दिन से अपना नया काम तक करने के लिए? मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है। इस तरह से सीताराम ने खुशी खुशी जो नत्थु को ये बात खुशखबरी सुनाई। यू विल हैव टू सपोज, अब तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, क्योंकि अब ये बैंक का कोई भरोसा नहीं रहा, अब ये अपने आउट ऑफ बिजनेस हो गई है, अभी बैंक पूरी तरह से बंद होने वाली है। हाउज दैट, ये कैसे हुआ? सेड नत्थु, नत्थु ने पूछा। हैवंट यू हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना? वेल यू वुड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी। अच्छा ठीक है, नहीं मालूम ना, अब रुक जा, आधा घंटा रुक जा, पता चल जाएगा कि आधी जब आबादी आएगी पीपल नगर की अपना पैसा मांगने के लिए, तो तुझे पता चल जाएगा आखिर क्या हुआ। तो रुक जाना थोड़ी देर, आधा घंटा। एंड ही वेव्ड चीयरफुली, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन हिज साइकिल। और बड़े खुशी खुशी सीताराम अपनी साइकिल पे सवार हुआ और खुशी खुशी वहाँ से निकला, क्योंकि उसका यहाँ कोई अकाउंट या पैसा नहीं था और वो खुश था। नत्थु वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। नत्थु खुद से बड़बड़ाते हुए अपने काम की तरफ लौटा, झाड़ू लगाने के लिए। When he had finished his work, और जब उसने अपना पूरा झाड़ू लगाने का काम कर लिया, he sat down on the highest step, और वो जो है सबसे ऊंची स्टेप पर अपने जो है आकर बैठ गया। Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. और अपना काम ख़त्म होने के बाद इस उम्मीद के साथ वो बैठ गया
और इस पक्के इरादे के साथ वो ऊंची वाली सीढ़ी पर जो है बैठा बैंक की कि अगर मैनेजर आएगा तो मैं आज अपनी पेमेंट लेकर ही जाऊंगा और यहाँ से काम छोड़ दूंगा। डिटरमिन यानी पक्का इरादा करना, इरादा कर लेना। Who would have thought the bank would collapse? नत्थू सोच रहा है किसने सोचा था कि बैंक जो है ये दिवालिया हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। He said to himself, उसने खुद से कहा। He looked thoughtfully into the distance, दूर जो है देखने लगा, बड़े ही सोच में पड़ा हुआ था, अपनी सोच की गहरी निगाहों से दूर देखने लगा सीढ़ियों पे बैठ के। I wonder how could have happened, मैं हैरान हूँ कि इतना सब कुछ हो गया, कैसे हुआ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नत्थू कहने लगा। तो ये एक छोटी सी बात थी, एक छोटी सी बात ये थी कि पता नहीं नत्थू की पेमेंट क्यों नहीं हुई थी, आखिर वजह क्या थी, कुछ तो प्रॉब्लम उसमें होगा उसकी पेमेंट के लिए। लेकिन ये बात जो है पूरी बैंक तक आ गई, किस वजह से? महज एक जुमले की वजह से कि नत्थू ने जो बात कही कि मेरी पेमेंट नहीं हुई, तो सीताराम ने उसको कुछ और बताया। सीताराम की बात सुनने के बाद मिसेस श्रीवास्तव ने कुछ और जो है उसमें खिचड़ी पका कर बताया, और मिसेस भूषण ने जब सुना मिसेस श्रीवास्तव की बात को तो उन्होंने जाकर वहाँ पर पूरे बाज़ार में उस बात को फैला दिया, और एक अच्छा खासा बैंक, एक खुशहाल और बहुत ज़्यादा रुपये पैसे वाला बैंक एक रूमर की वजह से, एक अफवाह की वजह से डूब गया। तो इसीलिए जो है कभी भी बिना सोचे समझे, बिना किसी बात को जो है, बिना किसी सबूत के या बिना किसी जो है पुख्ता बात को जाने बगैर हमें कभी भी जो है कोई बात का नतीजा या फिर उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, वरना इसमें बहुत बड़ा जो है किसी का नुकसान हो सकता है। और यही बात जो है इस लेसन के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। द बॉय हु ब्रोक द बैंक, एक लड़का जिसने बैंक को क्या कर दिया, दिवालिया कर दिया, ब्रोक कर दिया। थैंक यू वेरी मच।